Actually, I am a safety officer. That is, safety officer is a job that is as per the requirement of Factories Act, Section 40B. Safety officer is a technical person who is a BTech in any of the engineering stream, and he Hmm. has to look into all the safety aspects that is in the industrial place in the any of the site, so that to safeguard the people working there, as well as he has to ensure the safety of infrastructure, safety of environment, safety of the people working, as well as overall no loss to the organization and no loss to the society. I'm in this profession since 2002, especially. Before this, I was a mechanical core mechanical engineer, supervisor, truly speaking. Okay, ma'am. Okay. Actually, ma'am, क्या है कि being a safety officer, there are lot of problems that a person face day to day, especially the technical aspect, technical related risk, and the legal related risk. The technical risk, like what are the hazards and the risk that is in the organization relating to the process and relating to the activities thereof. And one major risk, that is the labor problem, because of for safety and for a safety system, one thing is very much important: everything should be in a balanced mode, whether it is technical aspect, whether it is maintenance, whether it is legal aspect. Legal aspect, because of I'm saying, we have to get the work done from the workers, we have to get the work done from contractors, we have to engage many of the contractor agencies for site. So at in this situation, it becomes mandatory for us that the legal compliance relating to environmental safety as well as labor laws are complied on ground. So environment, health and safety, that is no any issue, because of we know very much and we are proficient to handle such type of issues. But the situation becomes worse when the labor related issues generate, like no timely payment of the workers, like overstayed of workers due to shortage of the labor. Such type of problem generally an employer face. And in such situation, the contractor generate a gap, contractor violates. And because of I am as an employer, I am the principal employer, so it is the sole responsibility that I have to ensure the compliance within the time. So to understand legal requirement becomes very tricky for a safety officer. So I was in the search of a practical platform where I can learn the practical things. I joined this course in February 2019, and the LASICO team helped me a very practical way, because of they know that I am a safety officer. So the assignment given to me were relating to my job profile. That is very much helpful. So I think that this course gave me a lot of competency advantage for in the form of value addition. कि लाइव क्लासेस जो है वो एक्सरसाइज पे बेस होती हैं. पहले एक एक्सरसाइज दी गई, एक्सरसाइज जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक्सरसाइज दी गई कि द वर्क प्लेस रिस्क एट कंस्ट्रक्शन साइट. सो उसमें जो वर्क प्लेस रिस्क है वो है फिजिकल रिस्क, जैसे कि मटेरियल हैंडलिंग एक रिस्क है, जैसे वर्क प्लेस पे जो मशीनरी चल रही है उस पे एक रिस्क है. अब उन रिस्क को तो मैं डिफाइन कर लेता हूं, लेकिन जो एक्सरसाइजेज में था वो था व्हाट आर द लीगल रिस्क दैट आर एट ए कंस्ट्रक्शन साइट. सो अब मैंने उस चीज के लिए देखो दो चीजें हैं. एक तो है जो मुझे असाइनमेंट्स मिले और जो मुझे हैंडबुक्स मिली लासिको की तरफ से, वो बड़ी अच्छी रही, उसमें हेल्पफुल. सेकंड, एक मुझे एक मौका मिला, एक दिस वाज द अपॉर्चुनिटी फॉर मी, कि मैंने क्या किया कि जो हमें सिखाया जाता है वो ये कि एक ना प्लेगरिज्म हर्डल होता है कि हम कुछ भी कॉपी ना करें, जो भी करना है उसको हम सर्च करें. एक लीगल सर्च, ये लीगल एस्पेक्ट्स में भी आता है, और उसको प्रैक्टिकल वे से जोड़ें. तो जब एक हफ्ते में एक एक्सरसाइज को परफॉर्म किया, जैसे कि मैं इस एक्सरसाइज का नाम बता रहा हूँ कि द चैलेंजेस एंड द रिस्क इन एट कंस्ट्रक्शन साइट,
एंड द लीगल चैलेंजेस स्पेशली। फिर उसके बाद वो सबमिट होने के बाद उसका एक फीडबैक सेशन होता है। ज्यादातर उस फीडबैक सेशन को अभ्युदय अग्रवाल जी ने लिया है। तो उन सेशंस में जो क्वेश्चन आंसर सेशन आते हैं और जो डाउट है, जो गैप जनरेट होता है, या कुछ समटाइम्स हम कुछ एसेंशियल पार्ट को मिस कर देते हैं, वो उसमें जब अटेंड होता है तो वो एक ना परमानेंट लर्निंग बन जाती है, जो कि मैं समझता हूँ कि उसको फिर दोबारा जिंदगी में क्रैम करने की जरूरत नहीं है, जो एक अच्छी चीज में ट्रूली स्पीकिंग मैं बताऊं। क्योंकि प्रैक्टिकल वे में पहले आदमी उस पर मेहनत करता है और फिर उसके बाद उस पे जब उसके गैप्स उसको इन द फॉर्म ऑफ फीडबैक क्लासेस जब वो बताए जाते हैं तो वो उसके लिए परमानेंट लर्निंग बन जाता है। दैट इज हेल्पफुल फॉर डेवलपिंग द कोर कॉम्पिटेंसी ऑफ ए प्रोफेशनल एट ए वर्क प्लेस, आई विल से लाइक। देखो, एज ए सेफ्टी ऑफिसर हमें एक लिंक का काम करना पड़ता है एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में, एम्प्लॉयर और लेबर के बीच में, एचआर और टेक्निकल पर्सन्स, मेंटेनेंस पर्सन, प्रोडक्शन पर्सन्स के बीच में, प्लानिंग डिपार्टमेंट, प्लानिंग इंजीनियर्स और मैं कहूंगा कि फिर दोबारा से सब कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में। तो ये जो सारी चीजें हैं, और एक और चीज मैं सबसे ज्यादा जो बताना चाहूंगा वो होता है कि कुछ सेफ्टी से रिलेटेड ऑडिट्स होते हैं। जैसे मैं कहूंगा कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम पहले जो है उसको बोलते थे OHSAS 18001, OSAS 18001। अब वो कन्वर्ट हो गया है ISO 45001। उसके अंदर जो है वर्कमैन पार्टिसिपेशन एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो उसमें जो है जो चीजें आती थी, जो इसके बाद, इस कोर्स के बाद हम एक लीगल रजिस्टर बनाते हैं किसी भी उसमें कि क्या क्या कंप्लायंस मुझे टाइम पे चाहिए और उसके लिए मुझे किस किस टाइम पे, जनवरी में क्या करना है, फरवरी में क्या करना है, कौन सी रिटर्न कब भरनी है। तो वो चीजें जो है, लीगल रजिस्टर पहले एक बड़ा टफ जॉब होता था उसको समझना, लेकिन जब ये कोर्स किया और उससे रिलेटेड जो असाइनमेंट मिले तो उससे काफी इजी हो गया, और मैं समझता हूँ कि वो बहुत अच्छा जो है मेरे लिए हुआ। मैं एक बहुत अच्छी चीज ये शेयर करना चाहूंगा कि मैं अभी एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल, आई एम MBA इन HR, आई एम MBA इन प्रोडक्शन ऑपरेशंस, आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर एंड आई एम LLB आल्सो। बट इन सारे सिलेबस से वो सारी चीजें नहीं मिल पाती जो ग्राउंड पे रियल में हमें परफॉर्म करनी है। ला सीखो का जो ये प्लेटफॉर्म है, एक तो सबसे अच्छी बात ये है कि ये मेरे बजट के अंदर है और मैं उसकी फीस को बोर्न कर सकता हूँ, इतना ज्यादा महंगा नहीं है अगर मैं और प्रोफेशनल क्लासेस की तरह देखूं। इसका जो ऑनलाइन सिलेबस है, इसका जो बुक्स जो ये प्रोवाइड करते हैं हार्ड कॉपी में, तो मैं समझता हूँ कि ये ना लाइफ लॉन्ग लर्निंग को प्रमोट करता है। एक ना किस तरह से एक आदमी को अपने अंदर लाइफ लॉन्ग लर्निंग की हैबिट बनानी चाहिए, ये एक मैंने ला सीखो का कोर्स ज्वाइन करने के बाद महसूस किया। और मैं अपने इसके जो फ्यूचर स्टूडेंट्स हैं उनको ये मैसेज देना चाहूंगा कि ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अपनी कोर कॉम्पिटेंसी डेवलप करने का। आज मैं ये कहूंगा, मैं एक 40 ईयर ओल्ड एज का एक आदमी हूं और मैं ये समझता था कि नहीं, बहुत पढ़ाई हो गई, अब और पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे इस कोर्स को करने से मेरे को एक चीज महसूस हुई। एक संस्कृत का मैक्सिम है, मैं शेयर करना चाहूंगा कि रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा। आपके पास सब कुछ हो सकता है, कोई स्टेटस हो सकता है, आप विशाल कुल के हो सकते हो, बट विद्या विहीना ना शोभन्ते निर्गंधा इवा किशु का। लेकिन विद्या विहीन व्यक्ति इस तरह से शोभा नहीं देता जैसे कि देवालय के अंदर किशुका के फूल जो है वो शोभा नहीं देते, यानी जो गंधहीन फूल है, जिनके अंदर सुगंध नहीं है। मेरा मकसद ये है कि खाली डिग्री ले लेना, खाली एजुकेशन ले लेना ही सफिशिएंट नहीं है आज के जमाने में। अपने आप को उस पर्टिकुलर जो रिक्वायरमेंट है मेरा एक रोल प्ले करने की, प्रोफेशनल रोल की जो रिक्वायरमेंट है, उसके लिए अपने अंदर कॉम्पिटेंसी डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसको मैं ट्रू मायने में विद्या कहता हूं। क्योंकि विद्या वही है जिसके जरिए हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, हम अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकते हैं। और ये
प्लेटफॉर्म, मैं दोबारा से मैं कहूंगा कि इसका जो क्रेडिट जाता है वो लासिको टीम को जाता है, अभ्युदय सर को जाता है, रामानुज सर को जाता है, आप सब लोगों को जाता है, प्रियंका मैम आपको भी जाता है, क्योंकि टाइम टू टाइम आपने भी मुझे बहुत गाइड किया। और लास्ट में मैं यही कहूंगा कि कांस्टेंट लर्निंग इज द स्ट्रेंथ ऑफ एवरी प्रोफेशनल, और वो नहीं छोड़नी चाहिए, और इसको लाइफ लॉन्ग लर्निंग में आदमी को जोड़ के देखना चाहिए। ये मेरा मैसेज है मैम। थैंक यू वेरी मच।